Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit, and in this particular video, we are going to start a series on Django REST framework and Vue.js. And what we are going to build, we are going to build a to-do application, complete to-do application, where we will see a lot of things like user authentication. A user can create their own to-do and can access their own to-do. And we are going to create an API for this, like complete CRUD API, create, update, read, and delete. And after that, we are going to create a front end for that particular application, and all the front end code will be in the Vue.js CLI. We are not going to use CDN at all. Okay, so we will learn how we can install Vue.js with the Django REST framework and how we can create the APIs and other part of the projects. So without wasting time, let's start the coding. First, we are going to install this Django REST framework in this particular project. So let's go to the terminal and let's start Django REST framework. So to install Django REST framework, what we need to do is install Django REST framework. Here in the documentation you can easily find, and let's paste it over here. And after that, we are gonna update in our settings application. Okay, so let's go to the installed app section and add REST framework here as the documentation says. Okay, and let's go and REST framework. So let's REST framework is added, and we are going to create one app called to do python manage.py start app to do. Okay, so what it's gonna do is it's gonna create an application app called to do, and we are now good to go. So in the models.py, we are gonna create a base model to create all the, because I like to use UUID instead of normal ID. So we are gonna create a base model class, base model, and in this base model we are gonna pass models.model, and after that we are gonna pass UUID is equal to, and we are gonna import UUID, import UUID, and for the UUID, what's UUID? So UUID is basically an alphanumeric string which is completely you can say unique, and it's not gonna repeat at all. Okay, so instead of using like primary key of 1 2 3 4 5 6, we are gonna use UUID. It's a very like when you work in a company and when you work in like big organization, you don't use that kind of primary keys. Nowadays we use basically like UID, and if you have already used MongoDB, it automatically creates UUID instead of that 1 2 3 4. It's MongoDB uses default UUID to create primary keys. So let's models.uuid field, and for the default value we are gonna pass default is equal to UUID dot UUID4, and we are not gonna execute this function, otherwise it's gonna like run at once when we migrate. We're gonna like no, don't do this. And editable is equal to false, and unique is equal to unique, or we can say primary key is equal to true. That's all. After that we can add created at and updated at. Created at is equal to models dot date field, and auto now equal to true, and for the same, and for same we are gonna create one more field called updated at. Okay, now auto now add equal to true, and now we are gonna create like we are gonna import user, and every user have their own called, you can say, to do application. So we are gonna use the model which is present on Django itself, from django.contrib.auth.models, import user model, and we are gonna create class, and also we need to add abstract equal to true. It's called meta class, and we are gonna pass abstract equal to true. Okay, so so when we write abstract equal to true, it is treated as a, like you can say, base class, otherwise it's gonna treat as a model. And when we run python manage.py make migration, it's gonna create the table. But when we write abstract equal to true, it never create this particular model. It treats as a base class. Okay, so class to do, and we're gonna pass base model now,
and automatically it will populate these three fields. This is a part of inheritance. If you have already prepared Django, you can say Python object oriented part, you already know what this stuff is going on. So first of all, there will be a to do name. Okay, that's all. Models dot we can say like char field, and max length will be like 100, and after that there will be a to do description if someone wants to do, or otherwise we can remove it. And is completed, there will be a field models dot boolean field, and default it's gonna be false. Okay, and they're gonna be like user field is equal to models dot foreign key, and we're gonna pass user, and on delete we are gonna do models dot cascade in models dot cascade, and we can say like a related name we can add, it's equal to to-dos. Okay, user to-dos. Now we are good to go. To do, we have three fields called to do name and is completed and user, and we are gonna migrate this stuff. So let's go Python manage.py make migrations, and it's gonna create, you can see created a model called to do, and we are gonna run Python manage.py migrate. Okay, so complete, you can see migration is ready, and Python manage.py create super user. So create super user is done, and we got admin email address, we can say blank 123 and we're gonna bypass, and we are now good to go. And now we are gonna create a serializer field which is be used to serialize all the data. Serializer.py, it's import from Django, from REST framework, import serializers, and from to do dot models import to do, and class to do serializer, and we're gonna pass serializer dot model serializer. Okay, and class meta, and model we need to add to do, and we need to add what, how many fields, and what are the fields which we are gonna serialize. So we're gonna create a fields is equal to, we can use one method called exclude, which will exclude all the unnecessary field of created at and updated at, that's all. Okay, so like our to do serializer is now good to go, and now we are gonna create a views logic. So first of all, let's import the response from Django REST framework. We're gonna use the views. Basically we can, what we can do is we can use model view set to create all the APIs in just 2 or 3 lines of code, but I want to demonstrate all the things which you can do from this particular thing. So let's import API view. So what I want to do is I want to teach you each and every API how it works, and because view sets are quite easy if you know the basics of anything. If you know any kind of basic things, you all are good to go with the advanced stuff. So again we're gonna import a response. Okay, so now let's create class to do view, and we're gonna pass API view. Okay, and we have like some of methods get self and request, and first of all we need to add all the stuff called Django JWT, or we can use REST like token authentication, but we will add those things in later part of the video. So let's do this thing first. Def. So first of all we will get all the, you can say token. So user is equal to request dot user, and after that we're gonna get all the to-dos. To-do is equal to to-do dot objects. Let's import the model first from from dot models import to do.
Okay, so to do obj to do dot objects dot filter, and we're gonna pass user is equal to user, and after that we are gonna serialize the data. Serializer is equal to do serializer, and we're gonna pass all the to do's, many equal to true, and after that we are gonna get all the data, and we are gonna just return response status of true. Data is equal to serializer dot data, and message is equal to do fetch successfully. Okay, and now we are going to create a post request, post self request, and always open try catch. So first we are going to get user is equal to request dot user, and now we are going to serialize the data. So to get the data is equal to request dot data, and we are going to type data up, like update the data, update the dict is equal to user dot uid. Okay, and after that serializer is equal to do serializer, and we're gonna pass data is equal to data, and check if serializer dot is valid. If it's valid, if it's not valid, we are gonna return some error. Okay, return response status equal to false, and message invalid fields fields, and data is equal to serializer dot errors, and if it's valid, so we're gonna type, we have done a spelling mistake, serializer, so serializer dot save, and we're gonna return the response, return response status of true, message is equal to what, to do is created, and data is equal to serializer dot data. And now let's import the serializer from dot serializer import to do serializer. Now we are good to go, and now our two APIs are created, and let's add the Django permissions. Authentication is here, and we are going to use Django simple JWT library for adding JWT to our Django app. And to install this particular library, we are gonna install Django simple JWT. Let's open the terminal. Let's paste it over here, and it's gonna install Django simple JWT. And after that, we need to add this in our, you can say, like settings.py. So let's go in the settings.py. Okay, here we are in settings.py, and we are gonna paste it in below. Okay, so let's remove this, let's remove this, and let's remove this. Okay, and these are the APIs which we can use to create the get the token. So let's go in the, you can say, like URLs, and we can paste it over here, and these are the two paths. Because it's just a normal authentication system, we can use all these APIs. Otherwise we need to create one route which you can use to particularly check, or you can say validate everything, whether your password or your account is verified or not.
Okay, so path, to verify that particular token we need to add this one, and we need to add simple JWT in our what's wrong here, over here we need to add exception as E, and return response status is equal to false, and message is equal to something went wrong, and data is equal to what, this one. Okay, so we need to add this in settings.py, Django simple JWT, this one over here, and let's try this one in the postman whether we are able to obtain the token or not. So first we are gonna obtain the token, then we can update those all the things in our routes, or you can say views, so that our APIs can work perfectly. Okay, first let's run the python manage.py run server, and after that we can just simply copy the URL where we can, this one, API/token. Okay, so username is equal to what, admin, and the password is 123. Let's try this one. So you can see we are able to get all the token, like refresh token is this one and access token is this one. So let's hit the get API, and we are gonna get error because request.user is not available. Okay, also we haven't added those particular routes over here, so let's first import from to-do.views, import to-do view. Okay, and let's path API/to-do and to-do view dot as view, and now we are good to go, /API/to-do, and we're gonna hit, and again we are gonna error because like this one. So let's add this particular like permissions and other stuff over here. So now let's add the authentication classes. So we are gonna go in the views, and let's import from REST framework simple JWT dot authentication, import JWT authentication, and let's import the permission also from REST framework dot permissions, import is authenticated. Okay, so now let's add these permissions. So authentication classes is equal to JWT authentication, and permission classes is equal to is authenticated. So now our route is good to go, and let's see what can we get. So when we hit this particular route, it says detailed credential was not provided, and let's obtain a token. So what we need to do is we need to grab this token, we need to add this token in our header. So authorization, that's gonna be bearer, and this one, and let's, so what you can see is to do fetch successfully, and after that if we print this particular user, you can see the token which we have added is for admin, and when we print this particular user, you can see here we got admin as well. So now it's totally working, and let's try our post request. So what we are gonna do is post, and then when we just hit this particular data, we're gonna get error, something went wrong, and what's the error, this. Okay, so we're gonna print this exception. Why is this exception was raised, print of E, and let's hit this particular API again, and something went wrong, that user object has no attribute UID. Okay, so user has ID, so
something went wrong. To do serializer has no attribute is valid. To do serializer data equal to data. What's the issue here? Data is equal to data. Serializer dot is valid. I don't know why it won't work. Okay, so what we are getting here, we are required to give a to do name. So let's do to do name, and when we pass the to do name is called buy milk, and when we hit this particular route, you can see our to do is created, the UID is this, and the like to do name is this, and is completed is equal to false, and user is 1. And when we hit the get API, we can get all the to do which user has already created, this one. So let's test it out, our update API. So for update API, we are going to do a patch request. We are going to write patch method for this, def patch and self request. So data is equal to request dot data, and we need a UID. So what we need to do is, if we want to update any particular to do, we need to pass that particular UID patch request from the postman, or you can say as a data. Let's validate if this particular dict has, or you can say if particular JSON has this particular key or not. Data dot get UID. So if UID is not there, if not, then we are going to return this particular response that UID is required. Okay, so this one, the status false, and we're going to pass this error, UID is required. And otherwise, what we are going to do is, we're going to get the object from that particular UID, and also we need to check like if UID, if someone has passed the UID and that particular UID exists also. So obj is equal to do dot objects dot filter, and you can say like UID is equal to data dot get UID, and if obj dot exist, if not obj dot exist, then again we are gonna return the error response that status is false, and the message is invalid UID. Okay, and again now we are gonna open the serializer. Serializer is equal to do serializer, and for the data is equal to, we're gonna pass the data, and first we are gonna pass the obj, and data is equal to data, and to for the update request we are gonna pass partial to, because we are going to add, you can say like patch request. For the patch request, it needs a parameter called partial equal to true. And now we are gonna check again if we can copy the same code which we have above already mentioned. This one, if serializer is valid, then serializer will save, and we're gonna pass this thing. So let's copy this one and let's paste this one over here, and let's keep the indentation right. So yeah, before going further to the video, I have a very important information. If you want to become a full stack engineer in just 6 months with guaranteed placement of 5 lakh LPA, so Newton School is just for you. And what's Newton School? Newton School is basically an e-learning platform which provide you training for complete full stack development. Best part of Newton School is that they give guaranteed placement of 5 lakh. That means you don't need to pay any amount until you get the job of minimum 5 lakh LPA, and it's totally written over here like zero fee till placement. The best part is a lot of companies from India recruit Newton School students. You can see a lot of companies are, all these are product based companies like Deloitte, Nykaa, Zomato, Xiaomi, Baiju, and the pay scale of all of these companies are very high. And also they provide live classes, industry projects, mock interviews, and my personal favorite is what, personal mentoring. And if you want to become a full stack developer in just 6 months with minimum guaranteed placement of 5 lakh, so you can join the Newton School course, which is, the link is in the description section, and you don't need to pay any amount until you get the placement, and the placement is about
5 lakh is the minimum placement, and you can grab a placement like 40 lakh. A lot of Newton School students have gained the placement of 40 lakh, 30 lakh, 20 lakh. So you can change your career, and the link is in the description section. You can check those out. So let's go to the video again. So we have corrected the indentation also. Try this one, and we need to close the, you can say like this one. Try, and we need to this one over here, and let's just accept exception as E, and again we are going to copy the exception which we have raised. So let's just copy this thing and paste it over here. Okay, so now we are good to go for the patch request, and let's try this one out. So let's hit from here patch. Okay, so given token is not valid for any token type. Token access token, what's okay, maybe this token has expired. So let's just hit again, and let's copy this token. Let's add this token. Okay, UID is required, so let's pass the UID. So we can grab the UID from the admin panel, admin 123, and let's, okay, we need to add the to do as well. So the admin.py from dot models import to do, and we're gonna write admin dot site dot register to do. Okay, we're gonna save, and we're gonna reload the page, and we're gonna get the to do and just copy the UID, and let's just update this one. So, and what's the key is completed. We are gonna set now is completed is equal to true. Is completed is what? True. Let's hit this one. Something went wrong. Queries had no attribute meta, because we are getting filter. So filter returns the query set, and we need to pass that specific object. And let's again hit this one. Now you can say like to do is completed, and if you want to toggle something, like if you want to do false, and we can do false as well. And if we want to create this particular data, so we can go from here. So what we can do is we can like post request, and instead of this one we need to pass it by vegetables. And if we hit this particular route, and we can say to do is created, and if we can get the data, and you can say we are able to get buy milk and buy vegetable, both those are all to do which we are able to get. And if we like remove the token, if we like someone updates the token, and if we like something went wrong to the token, and it will be written the error response. So our API is totally completed, and in the next part of the video we are going to create the Vue.js code. We are going to write the Vue.js code. We will create the UI part, and let's add more JavaScript to this particular API. एंड अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम Vue.js को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हम Vue CLI यूज करेंगे, एंड इसमें काफ़ी और भी चीज़ें होंगी, लाइक अपने हम राउट्स को कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो JWT टोकन को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें और भी होंगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। सबसे पहले अगर आपको Vue.js आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप Node.js को इंस्टॉल कर लोगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फिर आपको यहाँ पे Vue.js को इंस्टॉल करना होगा। सो आप इंस्टॉल Vue CLI करोगे, उसके बाद में आपको ये कमांड लिखने पड़ेंगे, npm install -g @Vue CLI। अगर आप Node.js की जगह yarn यूज कर रहे हो एज अ पैकेज बिल्डर, या फिर कह सकते हैं डिपेंडेंसी मैनेजर के लिए, तो फिर आप yarn यूज कर सकते हो, yarn global @Vue CLI। उसके बाद जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको Vue वर्जन करके एक एप्लीकेशन लाइक करना पड़ेगा। मैं आपको Vue.js में दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैंने Vue.js इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे Vue वर्जन लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे दे देगा जो लेटेस्ट वर्जन आपका Vue का होगा।
ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसलिए वजह से मैं इसको नहीं करूँगा। अब हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे आएंगे एंड उसके बाद प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो व्यू क्रिएट एंड हाइफन टू डू ऐप करके हम नाम देते हैं। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि आप इनिशियली में उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हो। सो हम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे, लाइक जैसे मैनुअली सेलेक्ट में जाएंगे तो बेबल हो गया, उसके बाद हम इसमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। राउटर हो गया, उसके बाद व्यू एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर व्यू एक्स को हम हटा भी सकते हैं। ओके, सो इतनी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। सो हमारे पास पहले पहले क्या चीज़ है, हमें राउटर चाहिए होगा, क्योंकि हम राउट उसी से ऐड ऑन कर पाएंगे, जैसे लॉगिन का राउट हो गया और रजिस्टर का राउट हो गया, टू डू का राउट हो गया, तो ये सारे 3 राउट हमारे रहेंगे। अब उसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा कौन सा Vue.js वर्जन आप यूज़ करना चाहते हो। लेटेस्ट वर्जन के साथ जाएंगे 3 साथ, और हिस्ट्री मोड डेफिनेटली येस करेंगे एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हमारा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्यू CLI प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है एंड अभी भी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अभी भी इसमें चीज़ें बची हुई हैं। सो हम वेट करते हैं जब तक ये पूरा इंस्टॉल नहीं हो जाता है, ठीक है। सो हमारा Vue.js पूरा इंस्टॉल हो चुका है एंड अब करते हैं cd to do ऐप के अंदर cd to do हाइफन ऐप एंड यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद इसको VS कोड में खोल लेते हैं एंड आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जब हम Vue CLI से इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपका कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें आपके नोड मॉड्यूल्स रहेंगे, इसमें कह सकते हैं कि जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। उसके बाद में ये आपका पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे आपकी index.html फाइल है एंड उसके बाद यहाँ पे SRC मिलेंगे, इनमें मेन हमारा व्यू का कोड लिखा होता है। एसेट्स में आप CSS वगैरह ऐड ऑन करते हो। उसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स बनाते हो, क्योंकि व्यू एक सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करता है, तो आपका सारी चीज़ें इस जो भी चीज़ आप लिखते हो वो इस आईडी के अंदर जाकर के अपेंड होता है या फिर मैनिपुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद में कंपोनेंट्स हो गए, उसके बाद में राउटर हो गए, हमारे राउटिंग की जो भी फाइल होंगी, लाइक जो जो हमने राउट बनाए होंगे वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद में हमें व्यूज़ के अंदर अपने व्यूज़ लिखते हैं, लाइक जैसे लेट सपोज अगर मैं कोई रजिस्टर व्यू लिख रहा हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, होम हो गया, इस तरीके के व्यू होंगे एंड ये आपका मेन ऐप व्यू होता है एंड यहाँ पे राउटर लिंक आपको दिया हुआ है एंड ये राउटर व्यू है। मतलब इसी व्यू के ज़रिए यहाँ पे जो भी चीज़ आप ऐड ऑन करोगे, जो व्यू दिखाना चाहोगे वो यहाँ पे ऐड ऑन होगा। उसके बाद में हमारी main.js है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर Vue.js एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो लिखते हैं npm run serve, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो। सो जैसे ही ये सर्वर स्टार्ट होगा तो लोकल होस्ट 8080 पे आपको एक पोर्ट मिलेगा जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट आउट कर सकते हो एंड ये भी बिल्ड कर रहा है, ओके। सो ये हमारा बिल्ड हो गया है। तो ये आपका एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपका होम आ गया, ये आपका अबाउट आ गया एंड ऐसे ही अगर हम और राउट ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, लाइक लेट सपोज मैं राउटर के अंदर आऊँगा और मुझे एक राउट बनाना है लॉगिन का। तो मैं इसके अंदर पहले तो व्यूज़ बनाऊँगा आकर के लॉगिन करके। सो लॉगिन डॉट व्यू, और उसके बाद इसके अंदर मैं ये वाला कोड कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ अ लॉगिन पेज, दिस इज़ अ लॉगिन पेज, ठीक है, दिस इज़ अ लॉगिन पेज। उसके बाद में ये index.html में ये चीज़ हम जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे स्लैश लॉगिन एंड इसका नेम जो होगा वो लॉगिन होगा। उसके बाद में कंपोनेंट लॉगिन होगा। अब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम व्यूज़, ये लॉगिन करके आ गया एंड अब हमें राउटर लिंक में जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन एंड ये आ जाएगा लॉगिन हमारा, ठीक है। सो अब हम जब इसको रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड हम चाहते हैं कि ये हमारा अनयूजुअल चीज़ें ना दिखाए, तो फिर हम अपने होम हेलो वर्ल्ड वाले कहाँ गया, होम के अंदर जाएंगे, ये हेलो वर्ल्ड वाले को रिमूव कर देंगे, हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट को, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपका काफ़ी अब साफ़ सुथरा लगेगा। और उसके बाद इस इमेज को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये अबाउट पेज हो गया, ये लॉगिन पेज हो गया, ये आपका होम पेज हो गया। एंड अगर मुझे कुछ यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करा सकता हूँ H1 के अंदर। ये रहा, दिस इज़ होम पेज। सो
अब आपका ये अबाउट, लॉगिन, होम, ये 3 आपके पेज बन गए। लाइक होम पेज ये हो गया आपका, फिर ये आपका अबाउट पेज हो गया, ये आपका लॉगिन पेज हो गया। अब हम आते हैं अपने यूआई पार्ट की तरफ। सो इसमें हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे, एंड बूटस्ट्रैप हम कोई लाइक कह सकते हैं वो चीज़ नहीं इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे सीडीएन के थ्रू यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करते हैं एंड index.html में ऐड करके रखे, यहाँ पे हम जैसे हेड के ऊपर पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट कर देंगे, एंड ये सारी क्लासेस अब हम इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ऐड कर पाएंगे। लेट सपोज अगर मुझे होम के अंदर कोई बटन डिस्प्ले कराना है बूटस्ट्रैप काइंड ऑफ का, तो मैं लिखूँगा बटन क्लास ऑफ btn ऑफ सक्सेस क्लिक मी, ठीक है। तो ये अब बटन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा होम में, क्लिक में, जो बूटस्ट्रैप का बटन होता है। तो ये हमारा राउटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। होम हो गया, अबाउट हो गया, लॉगिन हो गया। अब हम इसमें आते हैं अपनी सबसे पहले जो हमारा पेज बनेगा वो लॉगिन पेज रहेगा। सो लॉगिन पेज के लिए हम आते हैं यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप पे, सॉरी फॉर्म्स में। सो फॉर्म्स में आते हैं, उसके बाद में ये वाला फॉर्म जो है वो हम इसको कॉपी करके जो हमारा लॉगिन डॉट व्यू है इसमें जाकर के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, एंड यहाँ पे हम यूज़र नेम से लॉगिन करवा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, ओके। एंड उसके बाद में इन सब अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा लॉगिन पे ये आ गया, ठीक है, यूज़र नेम इस तरीके से। एंड चलते हैं एक बार, यहाँ पे कहीं पे CSS लिखी होगी, टेक्स्ट लाइन सेंटर करके उसको हम रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब हम अपने लॉगिन में आते हैं, एंड यहाँ पे div क्लास ऑफ कॉल ऑफ 6mx ऑटो, ताकि ये सेंटरली अलाइन हो जाए। हाँ, यहाँ पे div को क्लोज कर देंगे, तो आप देखोगे ये सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है। एंड सेम टू सेम चीज़ें अब हम यहाँ पे इसके लिए भी कर सकते हैं, जो ये ऐप के अंदर हमने जो ये डिस्प्ले करवाया था, कहाँ गया, इंडेक्स के अंदर। सो जल्दी से आते हैं एंड यहाँ पे भी ये चीज़ पेस्ट कर देते हैं। सो ये भी हो गया, एंड दिस इज लॉगिन पेज, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट का हमें कोई एज यूजुअल काम नहीं है। सो नाउ हमारे जो राउट्स हैं वो परफेक्टली फाइन हो गए, एंड अगर हम चाहें तो यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक आप डॉट व्यू में टेक्स्ट लेट्स ट्राई, अगर ये सेंटरली असाइन हो गया तो, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारा अबाउट, होम, लॉगिन, ठीक है। सो ये लॉगिन पेज हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कह सकते हैं कि हमें इसके अंदर डेटा को ऐड करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर यूज़र नेम यूज़ करते हैं, पासवर्ड ऐड करें, तो वो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए भेजना पड़ेगा और वहाँ से हमें एक JWT टोकन मिलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर Vue.js के अंदर लॉगिन में यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैग खोलना पड़ेगा, ठीक है। एंड लेट्स सपोज ये रॉन्ग वाला टाइप हो गया, स्क्रिप्ट, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे डेटा रिटर्न और इसका नाम होगा, तो जो ये इसका नाम होगा, इसका नाम लिखेंगे यूज़र नेम, ठीक है। एंड यूज़र नेम हमारा एम्प्टी आएगा, एंड यहाँ पे आएगा हमारा पासवर्ड, एंड ये भी हमारा एम्प्टी आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लॉगिन पेज पे आएंगे, आई डोंट थिंक वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। सो हमारा ये सही हो गया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हम यहाँ पे वी मॉडल ऐड करेंगे, ठीक है। सो वी मॉडल जो आएगा यहाँ पे यूज़र नेम, एंड यहाँ पे आएगा क्या, वी मॉडल इज इक्वल टू पासवर्ड, ओके। एंड वो जो वी मॉडल आएगा वो यहाँ पे हम प्रिंट भी करवाएंगे यूज़र नेम को, एंड लेट्स ट्राई कि ये वैल्यू बाइंड हो गई है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो वो चीज़ें आप देख पाओगे वो यहाँ पे भी ऐड ऑन हो पा रही हैं, एडमिन। अगर मैं 1 2 3 के लिखूँगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली व्यू के अंदर पॉपुलेट हो रही है, मतलब इस डेटा के अंदर आ रही है। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं मेथड्स करके, ठीक है, मेथड्स, एंड यहाँ पे लिखते हैं सबमिट। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट यूज़र नेम एंड कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे जब हम करेंगे, सो यहाँ पे लिखते हैं वी ऑन क्लिक, तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं @click, ठीक है। एंड इस फंक्शन का नाम क्या है, सब
सबमिट, ठीक है, सबमिट, ओके। सो अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, कंसोल में आते हैं, उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं एडमिन, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3। तो जब मैं सबमिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे यहाँ पे एडमिट और 1 2 3 आ गया है, एंड यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। सो ये अब हमारा सही सही काम कर रहा है। अगर हम जाएंगे तो ये अब सही से काम कर रहा है। एंड सो या अब आगे बढ़ते हैं, एंड इसमें हम फेच यूज़ करेंगे फॉर सेंडिंग पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड उसके लिए हम अपने यहाँ पे डेटा को, हमारा एक सेकेंड और है, ये जैंगो का सर्वर मैंने स्टार्ट कर लिया है, अब इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। सो कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट, एंड इसका ऑप्शन रहेगा रिक्वेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज़ करेंगे फेच वाली, रिक्वेस्ट ऑप्शंस, ठीक है। एंड इसमें जो मेथड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पोस्ट। सो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें हेडर्स करके एक की आएगी, हेडर्स, एंड हेडर्स में एक और वो आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, एंड इसमें रहेगा हमारा कंटेंट टाइप। जो कंटेंट टाइप रहेगा वो हमारा एप्लीकेशन जेसन रहेगा, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। एंड उसके बाद में एक्सेस कंट्रोल हमें एक और व्यू CLI में देना पड़ता है ताकि क्रॉस हेडर की एरर ये सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन करके, एंड इसमें हम एस्ट्रिक कर देंगे, एंड यहाँ पे ये रहेगा। तो ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद में अब हम अपनी बॉडी भेजेंगे। सो बॉडी में हमारा जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड रहेगा, सो बॉडी इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके मेथड होता है, एंड यहाँ से हम यूज़र नेम भेजेंगे। यूज़र नेम हमें दिस डॉट यूज़र नेम करके मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड भेजेंगे, जो कि होगा क्या, दिस डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब उसके बाद में ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट तैयार है। अब यहाँ पे फेच को कॉल कराएंगे, सो फेच, एंड उसके बाद जो URL है वो हमारा क्या है, लोकल होस्ट HTTP करके है। सो उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, लोकल होस्ट 8000, एंड जो एंड पॉइंट है उसका नाम है API/token, ठीक है, API/token। और उसके बाद में हम यहाँ पे ऑप्शन भेज देंगे, वही जो रिक्वेस्ट ऑप्शन करके हमने की बनाई है, रिक्वेस्ट ऑप्शंस करके। उसके बाद में ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा अगर हमारा रिजॉल्व हो गया, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट जेसन, ठीक है, एंड डॉट देन डेटा इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे क्या, डेटा को, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं API को। सो ये हमारा इसमें टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक बार इसको रीलोड करते हैं, क्रोम में नहीं टेस्ट करेंगे, क्रोम में एक एरर पता नहीं क्या आ रहा है, एडमिन 1 2 3। इसको जब हम सबमिट करते हैं तो इसमें एक और ये प्रॉब्लम आ रही है, यही प्रॉब्लम क्रोम में भी आ रही थी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये हो गया, एंड कंटेंट टाइप हमारा एप्लीकेशन जेसन हो गया, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन एंड एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। सो अब ये चल चुका है, लाइक अब मैं यहाँ पे अगर ट्राई करता हूँ क्रोम को बंद करके, आई डोंट नो, पता नहीं क्रोम के साथ क्या प्रॉब्लम है, फिर ये आपको एक टोकन मिल जाएगा। सो ये आप देखोगे रिफ्रेश करके ये टोकन मिला, एंड ये हमारा एक्सेस टोकन हो गया। तो इस टोकन को अब हम लोकल स्टोरेज में सेट करवा देंगे इस तरीके से। चलते हैं VS कोड में। तो जैसे ही हमें ये टोकन मिलेगा तो हम डेटा को पहले निकाल लेंगे। तो डेटा हमारा क्या है, डेटा डॉट एक्सेस करके। सो डेटा डॉट एक्सेस जब हम करेंगे, डेटा डॉट एक्सेस, तब हमें ये एक्सेस टोकन मिल जाएगा। अब हम इस पर ट्राई करेंगे, बिल्ड हो रहा होगा, ठीक है, एडमिन 1 2 3। तो ये हमें एक्सेस टोकन मिल चुका है। अब इस टोकन को हम सेट करवा देंगे, ठीक है। सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एंड इसमें हम टोकन और जो हमें डेटा मिला है, डेटा डॉट एक्सेस करके, सो इस टोकन को अब हम सेट करवा देंगे। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे एप्लीकेशन में, लोकल स्टोरेज में आओगे, तो ये आपको ये टोकन मिल जाएगा। अब हम इस पर जब सेट करेंगे, रीलोड करना पड़ेगा पेज को, यहाँ पे हम लिखते हैं एडमिन 1 2 3, एंड जैसे ही हमने सबमिट किया तो आपको ये देखो टोकन करके मिल गया। मतलब अब हमारा ये जो टोकन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत ही हम इसको रिडायरेक्ट करवा देंगे कौन से, मेन पेज पे। सो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू स्लैश, ठीक है,
तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा लॉगिन होगा तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट पेज पे आ जाएगा, लाइक होम वाले पेज पे। तो हम एडमिन लिखते हैं, एडमिन 1 2 3 एंड ये हमें होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब कोई ऑथेंटिकेटेड होगा तब ये होम पेज को एक्सेस कर पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर में जाकर के इसको सेट करना पड़ेगा। सो राउटर में चलते हैं अपने इंडेक्स राउटर डॉट पी इसमें। तो इसमें अब हम एक फंक्शन बनाते हैं गार्ड करके, ठीक है। सो कॉन्स्ट GUARD गार्ड, एंड गार्ड में हम एक फंक्शन लिखते हैं जो कि 3 चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो, एंड नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में अब चेक कर लेंगे इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, अगर लोकल स्टोरेज में गेट आइटम टोकन नहीं है तो फिर, अगर है तो फिर इसको नेक्स्ट पेज पे जाने दो, अदरवाइज हम इसको रिटर्न करवा देंगे कौन से पेज पे, लॉगिन वाले पे। सो एल्स नेक्स्ट जो रहेगा स्लैश लॉगिन, ठीक है। ये हमारा गार्ड वाला फंक्शन है। अब इस गार्ड वाले फंक्शन को हमें यहाँ पे इसमें ऐड करना होगा। लेट सपोज हमें होम में ऐड करना चाहते हैं, तो होम के अंदर अब हम यहाँ आएंगे एंड लिखेंगे बिफोर एंटर, बिफोर एंटर, इसमें तो 3 चीज़ें आ जाएंगे एंड गार्ड वाले फंक्शन में हम ये तीनों चीज़ें पास कर देंगे, टू, फ्रॉम और नेक्स्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगी नेक्स्ट करके। सो अब इसको ट्राई आउट करते हैं एंड लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे अभी मेरे पास टोकन है तो मैं इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। एंड अगर मैं जा करके यहाँ पे टोकन को रिमूव करता हूँ एंड अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखोगे डायरेक्टली ये लॉगिन पेज पे आ गया। अगर मैं होम पे क्लिक भी करूँगा तो फिर ये नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि जब भी हम ये चीज़ करवाएंगे तो हमें टोकन को वेरीफाई करना पड़ेगा। उन चीज़ों को हम बाद में करेंगे जब हमारा लास्ट में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि यूआरएल्स में जब हमने जैंगो के गए थे तो यहाँ पे आप जाओगे वेरीफाई टोकन करके एक एपीआई है जिसमें आप जो भी टोकन मिलता है उसको वेरीफाई करते हो तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। लेट सपोज एक बार मैं आपको एपीआई भी एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। सो लोकल होस्ट 8000 स्लैश API स्लैश वेरीफाई स्लैश टोकन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोकन को जो हमें मिलता है उसको हम प्रिंट करवा करके एक बार वेरीफाई करवाते हैं। तो मैंने लिखा एडमिन 1 2 3 एंड इस पर सबमिट किया तो ये जो टोकन आया हम यहाँ पे आ गए। अब हम अगर हम एप्लीकेशन में जाते हैं, उसके बाद ये टोकन को अगर हम कॉपी करते हैं एंड ये टोकन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो अब ये हमें एक कह सकते हैं दे रहा है 200 का रिस्पॉन्स दे रहा है। इसका मतलब ये टोकन जो है वो सही है। अगर मैं इस टोकन में जाकर के कुछ भी मैनिपुलेशन करता हूँ, लाइक मैंने 9 को रिमूव किया तो ये हमें क्या देगा, टोकन इज इनवैलिड एंड जो इसकी रिस्पॉन्स है वो 401 अनऑथराइज आ गया। ये सारी चीज़ें हम माइनर चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हम होम पेज में आ चुके हैं क्योंकि हमारे पास टोकन है। इसी तरीके से हमें एक लॉग आउट राउट बनाना पड़ेगा। सो लॉग आउट राउट बनाने के लिए हम चलते हैं अपने ऐप में एंड ऐप में जैसे कि हमने यहाँ पे ये बनाया था तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और लिखेंगे क्या स्लैश लॉग आउट एंड यहाँ पे हम करते हैं क्या बटन एक बना देते हैं, ठीक है, बटन एंड @क्लिक लॉग आउट, ठीक है, ताकि ये टोकन को क्या करेगा रिमूव कर देगा लॉग आउट करके। एंड यहाँ पे हम बटन को क्लोज कर देते हैं या फिर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अगर आप बटन लिखोगे तो हो सकता है थोड़ा अलग टाइप में आए, तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लाइक पी भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिखना चाहो। अगर हम लिखते हैं बटन ही लिखते हैं एंड इसमें हम क्लास लगा देते हैं BTN ऑफ डेंजर की, ताकि ये थोड़ा सा बटन टाइप में लगे कि आपको लॉग आउट करना है, ठीक है। लॉग आउट आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लॉग आउट करके एक फंक्शन भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट करके हम टैग खोल लेते हैं, स्क्रिप्ट एंड सो लॉग आउट करके हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे एंड यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे थोड़ा सा मेथड्स में एक्सपोर्ट डेटा मेथड करके। सो ये रहा, उसके बाद मेथड में आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे क्या लॉग आउट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टोकन एंड इसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे नेक्स्ट, या फिर कह सकते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू स्लैश लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करो। एंड इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एक चीज़ हम और कर सकते हैं इज लॉग इन करके हमने बनाया एंड डिफ़ॉल्ट में इसको फॉल्स रखा, ठीक है। एंड जैसे ही ये क्रिएट होगा तो फिर हम चेक कर लेंगे क्या क्रिएटेड, तो फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे। लेट सपोज लोकल इफ
लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन अगर है, ठीक है, सो हम दिस डॉट इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को इस तरीके से। अगर वी इफ है, वी इफ इज लॉग्ड इन करके, ठीक है, और इसको रिमूव कर देंगे या इसको भी हम। अब हमारा ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी काम करने लगी है, ठीक है। एंड वी इफ से हमने इज लॉग्ड इन लगा रखा है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे टोकन जा करके लॉग इन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन 123 एंड उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो वैसे ही हमारे पास लॉग आउट बटन आ जाएगा। एंड जब मैं इस पर लॉग आउट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट बटन गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम टोकन भी रिमूव कर रहे हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होगे। एक बार मैं और सिमुलेट करके दिखाता हूँ। एडमिन 123 हमने पासवर्ड डाला, ओके। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पे टोकन आ चुका है यानी लॉग आउट बटन आ गया। अगर मैं लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ तो ये टोकन गायब हो जाता है एंड होम पे अगर हम जाएंगे तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर होम पे ऐसे जाता भी हूँ तो मैं लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर जाऊंगा, ठीक। तो अब बेसिक फंक्शनैलिटी हमारी चल चुकी है कि हम कैसे ऑथेंटिकेट वगैरह कर सकते हैं एंड ऑथेंटिकेशन हो गया पूरा पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें लाइक टू डू क्रिएशन एंड अपडेशन एंड इन सबको चीज़ों को देखेंगे एंड उसकी यूआई बिल्टअप करेंगे। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम इसमें हम आगे की और चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ आप देख पाओ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टू डू को गेट करेंगे एंड वो सारी चीज़ें करेंगे। एंड जो ऑथेंटिकेशन हेडर हमने एक लोकल होस्ट में सेव किया था, उस पर्टिकुलर चीज़ को भी हम देखेंगे। एंड अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा कंप्लीट रेस्ट एपीआई बनाई थी एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा ऑथेंटिकेशन पार्ट किया हुआ था, ठीक है। एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग टू ये चीज़ हम करेंगे इसमें। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हम लॉग इन करते हैं तो ये हमें यहाँ पे टोकन मिल जाता है। वी नीड टू गो इन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टोकन करके जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो मिल जाता है। एडमिन 123 करते हैं। मे भी शायद ये क्रोम पे नहीं काम करता है, आई डोंट नो, क्योंकि ये सॉरी सर्वर हमारा बंद है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। सर्वर को रन करते हैं। तो सर्वर मतलब रन हो चुका है एंड आई डोंट टोकन आ चुका है। एंड अब आप यहाँ पे जाओगे, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन में तो ये आपको टोकन मिल जाएगा, ठीक है। अब नाउ इस पर्टिकुलर टोकन के जरिए जैसे हमने एपीआई टेस्टिंग करी थी पोस्टमैन में, वही उसके जरिए अब हम यहाँ पे सारे के सारे टू डू दिखाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है विद इन 6 मंथ विद मिनिमम प्लेसमेंट गारंटीड ऑफ 5 लाख LPA, तो न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक कोर्स के एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। एंड अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख, ठीक है, तो न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। न्यूटन स्कूल आखिर है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की। एंड ये जो ट्रेनिंग होती है ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग होती है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। 6 महीने में आपको एक कंप्लीट डेवलपर बनाया जाता है। लाइक आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स भी सिखाए जाएंगे, जावास्क्रिप्ट सिखाई जाएगी, बेसिक से बिल्कुल हर एक चीज़ बेसिक से सिखाई जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नोट JS वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इनका करिकुलम भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद बेस्ट पार्ट ये ना, न्यूटन स्कूल के जो रिक्रूटर हैं या फिर कह सकते हैं जो न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट को हायर करते हैं, वो ये सारी कंपनीज हैं। एंड ये सारी कंपनीज में जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप चाहोगे तो बहुत बढ़िया लाइक इनका प्लेसमेंट होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिल जाते हैं एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपको न्यूटन स्कूल में इनरोल करना है डेफिनेटली आप जा सकते हो। 5 लाख तो इनका मिनिमम प्लेसमेंट है, इससे ज़्यादा इनके 40 लाख 20 लाख 30 लाख के भी प्लेसमेंट लगते हैं। एंड आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं देना होता जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की ना लग जाए। मतलब अगर आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लगती है तभी आपको अमाउंट पे करना होता है। तो आप न्यूटन स्कूल में इनरोल कर सकते हो
एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे कि हमें थोड़ा सा यूआई पार्ट भी देखना पड़ेगा, तो हम गेट बूटस्ट्रैप पे जाकर के एक जो लिस्ट वाला उनका आइटम होता है उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ताकि हम उसमें अपने टू डू एप्लीकेशन दिखा पाएंगे। ठीक है। एंड उसके बाद ये तो हमने पिछले वीडियोस में करा ही था कि अगर कोई ऑथेंटिकेट होगा तभी इस पर्टिकुलर पेज को देख पाएगा, अदरवाइज वो देख भी नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये होम वाला पेज है एंड इसमें LSLA लिख करके आ रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं आप डॉट व्यू में। ठीक है। ये लॉग आउट का बटन है। ठीक है। तो ये हमारा लॉग आउट आ चुका है। ठीक है। एंड सो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें वो दिखाना पड़ेगा। लेट सपोज क्या कहते हैं यहाँ पे सारे ये आइटम दिखाने पड़ेंगे। सो भाई div क्लास ऑफ कॉल MD ऑफ 6 कर लेते हैं एंड उसके बाद MX ऑफ ऑटो एंड उसके बाद में इसको हम प्लेस करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी UI यहाँ पे बन करके आ जाएगी। ओके। एंड दिस इज अ होम पेज को इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड इस बटन का भी कोई अब सेंस नहीं बनता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा आइटम खुल करके आ चुका है। एंड लेट्स सपोज अगर किसी को टू डू क्रिएट करने पड़ेंगे तो यहीं पे हम एक इनपुट बॉक्स भी दे देंगे टॉप पे। सो यहाँ पे दे देते हैं div क्लास ऑफ फॉर्म ग्रुप। ठीक है। एंड इनपुट क्लास ऑफ फॉर्म कंट्रोल टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। अब ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसमें लाइक वो सब भी लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर वगैरह ऐड करना है एंटर टू डू करके। उसके बाद में हम यहाँ पे एक बटन भी दिखा देंगे डी फ्लेक्स करके क्लास लगाएंगे एंड यहाँ पे हम इसको बटन को दिखा देंगे। बटन क्लास ऑफ BTN ऑफ सक्सेस एंड क्रिएट। ठीक है। बटन को क्लोज कर देंगे तो आप देख पाओगे एक छोटी सी बटन भी यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो ये कर रहे हैं इसमें हम मार्जिन ऑफ टॉप ऑफ 4 दे देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाए यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा टू डू आ चुका है। अब इसमें हम टू डूज को लाइक रेंडर आउट कराएंगे। सो सबसे पहले हमें एक API बनानी पड़ेगी। जब हम इस पर क्रिएट करेंगे तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगी जो कि एक टू डू को क्रिएट करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना सकते हैं जैसे कि हमने ऑलरेडी लाइक इन सब चीज़ों में बनाया हुआ था इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके। ठीक है। एंड होम में आते हैं। होम में आने के बाद यहाँ पे इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेटा। ठीक है। तो ये डेटा, तो डेटा का हमें कोई अभी ना वो है नहीं। एंड इसके बाद मेथड्स में हम इसको ब्यूटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। @click क्रिएट टू डू करके। ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे क्रिएट टू डू को एंड हमें यहाँ पे वी मॉडल लगाना पड़ेगा। वी मॉडल एंड यहाँ पे हम टू डू देते हैं। ठीक है। तो ये टू डू पे, इस टू डू को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो टू डू एंड इसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे एंड जो क्रिएट मेथड करेंगे इसमें हम फंक्शन कॉल करेंगे क्या, क्रिएट टू डू का। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो लाइक यहाँ पे जैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है। एंड जेसन में हमें क्या सिर्फ और सिर्फ पास करना पड़ेगा टू डू। तो जैसा कि मैंने आपको API में दिखाया था, ये रही API। हाँ, सीरियलाइजर्स में आ गए, मॉडल्स में आते पहले। ठीक है। सो मॉडल में हमें क्या करना पड़ेगा, टू डू नेम करके की भेजनी पड़ेगी। ठीक है। एंड ये यूज़र ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा जो भी यूज़र ने अपना टोकन वगैरह ऐड किया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं टू डू नेम एंड दिस डॉट टू डू एंड उसके बाद में हमें लोकल स्टोरेज से टोकन भी लेकर के आना पड़ेगा जो कि हमें हेडर में पास करना पड़ेगा। जैसे कि पोस्टमैन में आपको खोल करके दिखा देता हूँ। ये पोस्टमैन हमारा खुल रहा है।
फिर Django REST फ्रेमवर्क पे भी जा सकते हैं। Django REST फ्रेमवर्क पोस्टमैन हमारा ऑलरेडी खुल चुका है, तो इस पर चेक कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये ऑथराइजेशन, ये तो उसका है, ये था हमारा टोकन का। तो ये हमें ऑथराइजेशन बियरर इस तरीके से भेजना पड़ेगा, जो कि हमें हेडर्स में ऐड करना पड़ेगा। तो हेडर्स को हम कॉपी कर लेते हैं, ऑथराइजेशन हमें यहाँ से मिल गया। ओके, सो ऑथराइजेशन ये हमने पास कर दिया, ऑथराइजेशन हो गया। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे इस तरीके से पास करना पड़ेगा। टोकन हम ग्रैब ले करके आ जाएंगे। सो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड टोकन में जो भी वैल्यू पड़ेगी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम डॉलर साइन, सॉरी ये इस तरीके से बियरर लिखना पड़ेगा, बियरर, एंड यहाँ पे हम वो टोकन की वैल्यू को पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वो बन चुका है, पेलोड आप कह सकते हो। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो इसकी एपीआई है वो हमारी क्या थी, एपीआई स्लैश एंड पॉइंट हमें चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आते हैं व्यूज में, ये था टू डू, एपीआई स्लैश टू डू, इसी पे सारे हमारे रिक्वेस्ट जाएंगे। तो एपीआई स्लैश टू डू को हम इसमें पास करेंगे, एपीआई स्लैश टू डू, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद में जैसे ही जो भी हमें मिलेगा तो कंसोल डॉट लॉग डेटा करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड डेटा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी पूरी एपीआई बन चुकी है। एंड इसमें हमने वी मॉडल से पहले क्या करके टू डू ले करके हैं, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एक को रखते हैं, बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट टू डू, उसके बाद में कॉन्स लोकल स्टोरेज टोकन लेकर के आया, फिर ये सारी चीज़ें होगी, मतलब मैक्सिमम चीज़ें हमारी हो चुकी है। तो अब इसको एक बार ट्राई करते हैं कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये खोल लिया है। तो लेट सपोज यहाँ पे लिखते हैं बाय मिल्क एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो गिवन टोकन इज नॉट वैलिड फॉर एनी टोकन टाइप, टोकन नॉट, पता नहीं क्या हुआ था, रीलोड किया वैसे ही चलने लगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे चेक करोगे, बाय मिल्क लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड क्रिएट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टू डू हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या होगा, जैसे ही ये चीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली लेट सपोज सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गेट टू डू करने पड़ेंगे जैसे ये पेज रीलोड होता है। सो एक फंक्शन और बनाते हैं गेट टू डूज करके, गेट टू डूज, एंड यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे। सो कॉन्स रिक्वेस्ट, सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे, एंड ये इस तरीके से रहेगा। एंड जो मेथड रहेगा वो दैट इज गोना बी गेट, एंड इसको हम रिमूव कर सकते हैं, एंड ये चीज़ें रहेंगी गेट टू डूज। तो जैसे ही हमें पता होगा कि व्यू के अंदर जैसे ही ये पेज रीलोड होता है तो एक क्रिएटेड मेथड कॉल होता है। ठीक है, क्रिएटेड, तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कॉल करेंगे, दिस डॉट गेट टू डूज करके। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये पेज रीलोड होगा, टोकन इज नॉट डिफाइंड, इसका कोई ओके टोकन हमें लेकर के आना पड़ेगा। सो कॉन्स टोकन, ठीक है, तो अब रीलोड करोगे तो ये हमारे पास टू डू सारे आ चुके हैं जो कि 6 हैं। इस तरीके से आप देख पाओगे कि सारे के सारे टू डूज हमारे पास आ रहे हैं, इस कंप्लीटेड ये सब करके। तो हम क्या करते हैं, टू डूज करके एक एरे बनाते हैं एंड उसके अंदर इसको पॉपुलेट करा देते हैं। सो जैसे ये टू डूज हमें मिले तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, दिस डॉट टू डूज इज इक्वल टू डेटा डॉट, क्या करेंगे, डेटा डॉट डेटा कर देंगे, डेटा डॉट डेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये टू डू पॉपुलेट हो जाएंगे। एंड अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लूप करेंगे, इटरेट करेंगे। सो इटरेट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक वी फॉर टू डू इन टू डूज, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे की दे देंगे एक की इक्वल टू डू डॉट यू आई डी। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, ये आप देख पाओगे सारे के सारे टू डूज आ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ में हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, एंड अगर
ये टू डू इज कंप्लीटेड है तो फिर हमें इस पे स्ट्राइक वाली एक की लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पे करेंगे div या फिर कह सकते हैं स्ट्राइक, ठीक है। वी इफ टू डू डॉट, जैसा कि जो भी हमें डेटा मिल रहा था, टू डू डॉट इज कंप्लीटेड, ठीक है। इज कंप्लीटेड की थी ना ये एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। सो मॉडल्स में आते हैं जल्दी से। तो ये इज कंप्लीटेड, अगर इज कंप्लीटेड हमारे पास ये है वैल्यू, तो फिर हमें स्ट्राइक वाली की को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्राइक करके अदरवाइज कोई कंप्लीटेड है नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे वी एल्स लगाना पड़ेगा। वी इफ टू डू इज कंप्लीटेड, तो फिर हमने दिखा दिया ये, अदरवाइज डॉट टू डू नेम, एंड यहाँ पे हम टू डू डॉट टू डू नेम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टू डू नेम सारे आ चुके हैं। एंड लेट सपोज अगर हमें किसी को वो करना पड़ेगा, लाइक अपडेट करना पड़ेगा, तो हम जा करके पीछे से यहाँ से कर सकते हैं, बट अभी हम इसमें करेंगे। तो ये हमारे पास टू डू क्रिएट हो गए, मतलब ये टू डू वाले हो गए, अपडेटेड वाले। तो अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक फंक्शन कॉल करने का पड़ेगा जो कि इसको टॉगल करेगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे ट्राई करते हैं ऑन क्लिक अपडेट टू डू, अपडेट टू डू फंक्शन कॉल करते हैं। एंड यहाँ पे जैसे गेट टू डूज कर रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पे अपडेट टू डूज कर देते हैं, फंक्शन और नाम लिख देते हैं। और उसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, टू डू आईडी, ठीक है। तो जैसे ये हम कर रहे हैं तो इसके अंदर में टू डू आईडी पास करनी पड़ेगी। तो टू डू आईडी हम यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, @click, ठीक है। अपडेट टू डू, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे टू डू डॉट यूआईडी, ठीक है। तो अब जब अपडेट टू डू आएगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूआईडी मिलेगी, एंड इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूआईडी, ठीक है। अब देख सकते हो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी यूयूआईडी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अब जो ये यूयूआईडी हमें मिल रही है, इसी यूयूआईडी के जरिए हम वहाँ पे पोस्ट या फिर पैच रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट हम यहाँ पे टोकन पहले तो लेकर के आएंगे, एंड इसको कॉपी करते हैं, इस वाली रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे टोकन लेकर के आए, उसके बाद जो मेथड रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, पैच कंटेंट टाइप ऑथराइजेशन टोकन, एंड टू डू पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, एंड जो डेटा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इस तरीके से हम डेटा भेजेंगे इस टू डू कंप्लीटेड करके। जैसे कि हम यहाँ पे टू डू वो भेज रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, यू आई डी करके। सो ये रहा, ये तो पास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यूज डॉट पी वाई में आते हैं, तो ये रहा। पहले तो हम पैच रिक्वेस्ट में क्या यूआईडी गेट करेंगे, अगर यूआईडी होगी तो फिर हम टू डू ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे एंड ये सब करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या भेजना पड़ेगा, यूआईडी, यूआईडी हमें यहाँ पे उससे मिली है यूआईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे क्या, जो भी चीज़ लाइक वहाँ पे फ्रंट एंड से हमें ट्रू या फॉल्स मिल रही होगी वो चीज़ें हम यहाँ पे भेजेंगे। सो लेट सपोज हमें मॉडल में क्या भेजना पड़ेगा, इस कंप्लीटेड की वैल्यू, ठीक है। तो इस कंप्लीटेड इज इक्वल टू, ये भी हम यहाँ से भेज सकते हैं इस कंप्लीटेड, जो भी इसके अंदर वैल्यू सेट होगी, अगर इस कंप्लीटेड सेट होगी तो हम इस कंप्लीटेड ट्रू या फॉल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें इसमें दो पैरामीटर पास करने, टू डू डॉट इज कंप्लीटेड, एंड इसका उल्टा हमें भेजना पड़ेगा, जो भी आएगा उसका उल्टा हमें भेजना पड़ेगा, तो नॉट लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर इसमें ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स चलाएगा, फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं ठीक है। सो मैंने ट्राई किया, एक बार इसको लॉग आउट करते हैं, एंड इसके अंदर एडमिन के अंदर लॉग इन करते हैं, एडमिन 123 एंड सबमिट। तो आप देख पाओगे जैसे मैंने इसको किया तो तुरंत ही ये अपडेट हो गया। एंड उसके बाद में हमें करना क्या होगा, ये जो दिस डॉट टू डूज हम ये कर रहे हैं अपडेट टू डू, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे नहीं करना है, इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डेटा करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये ये हो गया हमारा दिस टू डू क्रिएटेड,
या फिर जो भी अपडेटेड डेटा आ रहा होगा टू डू इज अपडेटेड कर देना चाहिए था। ओके, सो ये गया। एंड इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, दिस डॉट गेट टू डू फिर से कॉल कर सकते हैं ताकि ये टू डू को फिर से ले करके आ जाए जैसे ही हम अपडेट करें। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे किया तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये सही से काम कर रहा है। ये गया, ठीक है। अब जैसे ही जाओगे मतलब अब बाय मेल करोगे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम टू डू क्रिएट करना चाहें तो हाय न्यू टू डू क्रिएटेड, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो फिर मुझे करना क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसको भी यहाँ पे नल करना पड़ेगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्रिएट टू डू कर रहे हैं, सो जैसे ही सक्सेसफुली डेटा आएगा, दिस डॉट क्या करेंगे, दिस डॉट टू डू, या फिर कह सकते हैं दिस डॉट टू डू इज इक्वल टू डू, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, दिस डॉट टू डू लिखा था ना, दिस डॉट टू डू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ पे डाल देंगे, दिस डॉट टू डू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे एंड दिस डॉट गेट टू डू फिर से कॉल करा देंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत ईजी प्रोसेस हो जाएगा ये। तो लेट सपोज हाय मैंने क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद इसको हमने वो किया एंड उसमें हम जो टू डू चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे व्यूज डॉट पी वाई में चाहेंगे तो ये हमारी एपीआई सारी कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है। सो लेट सपोज अगर मुझे इसको टू डू को डिलीट करना होगा तो मैं डिलीट की एपीआई बना लूँगा। एंड ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप डिलीट की एक एपीआई बनाओ, ताकि लेट सपोज किसी टू डू को अगर मुझे डिलीट करना हो तो वो मैं डिलीट कर पाऊँ। तो आप बहुत ईजी कर सकते हो इसको। तो अब मैं इस टू डू को अगर मैं चाहूँ तो आप यहाँ पे एक डिलीट का आइकन दे सकते हो एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये टू डू यहाँ से रिमूव हो जाए। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे डिलीट की एपीआई बनाई जैसे आपने पैच की बनाई है, आप यूआईडी लोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट चेक करोगे, उसके बाद उसको डिलीट कर दोगे। एंड अगर आपका टू डू क्रिएट और डिलीट हो जाएगा तो यहाँ से गेट टू डू फिर से कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉपुलेट हो जाएगा। एंड लॉग आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप लॉगिन पे चले जाओगे, होम पे जाओगे तो ये मिलेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पे चाहोगे भी तो भी नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं फिर से लॉगिन करता हूँ एडमिन 1 2 1 2 3 करके, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन वगैरह भी दिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये मेरे टू डूज आ गए। उसके बाद अगर मैं कोई क्रिएट करूँगा तो मैं यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं किसी को वो करना चाहूँ, ये हो चुका है मेरा, ये भी मैं पॉसिबल हो पा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड छोटा सा प्रोजेक्ट था एंड इसमें आपको व्यू जेएस एंड जैंगो का कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा कि कैसे काम करते हैं। एंड अगर आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जैंगो एंड व्यू के ऊपर, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड उनको मैं बनाने का पूरा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।